सो गाइज फाइनली हम एसएस लीफ आ गए हैं। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यार एसएस लीफ का प्रोजेक्ट ज़रूर दिखाओ, और मुझे भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है विथ लो डेंसिटी, और सिंस एक ड्रीम प्रोजेक्ट है फ्रॉम एसएस ग्रुप, सो आई मस्ट शो दिस प्रोजेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी पोजीशन भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाऊंगा, मिस्टर संचित फ्रॉम एसएस ग्रुप ओनली। वी विल म्यूचुअली एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोजेक्ट्स, ही विल एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोजेक्ट एंड वी विल एक्सप्लेन की हाउ इट इज़ कोरिलेटेड टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स। ओके, so guys, this is my friend Mr. Sanchit. Hi Sanchit, how are you? I'm good. How are you? सर ऐसा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में ना आप जितना मैक्सिमम डिटेल दे सकते हो आप प्लीज़ दो। और आई अंडरस्टैंड कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ न्यू गुड़गांव, सो और एसएस वाले को ड्रीम प्रोजेक्ट भी है एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन दैट। प्लीज़ एक्सप्लेन अस, ठीक है? So the Leaf, if we talk in terms of कि जो location advantage है हमारा, हाँ, we are bang on the gateway of New Gurgaon at the moment. Because आज क्या perception है, you position the project कि आप highway से कितना अंदर हैं. But now since the CPR is under construction, we are just 100 meters from the multi-utility corridor, जो सीधा जाके connect करता है CPR road से, and via CPR you connect to the rest of the Gurgaon and to the SPR road. So वो जो point है द्वारका expressway पे, we are just 1 kilometer from that point. So first advantage for this project is the location. It's very strategically located. 11.09 acres का total project है. It's all about 13 buildings which are under construction. Okay, ठीक है. It's a nearing possession product. So we are on a verge of completion. अगर हम status की बात करें. And it's a very low density project. If you closely look at the project comprises 3 high rises. The Leaf starts with a minimum 2 BHK with a 1640 square foot size, and these 3 towers which you see, these are all 2 bedrooms with exclusive entrance, grand lobby, and these 300 units are concentrated in the 3 high rises जो कि 25 storied है. Rest if we talk about 250 units, those are scattered over 10 buildings. तो अगर हम average out करें so per tower there will be just 25 families. Okay, that's great. So it's the So density I is think that as is low as amongst the lowest in Gurgaon. that. Yes, I mean आप 2 to a core से कम तो नहीं दे सकते हैं. बाकी ना जैसे सपोज मान लो आपने जो लोकेशन के बारे में समझा ना, वो मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना के लोगों को, अच्छा. स्पेशली कहाँ से सीपीआर से कैसे आते हैं वो मैं लोगों को अलग से समझा दूंगा, बिकॉज मैं एक एक चीज़ों को कोरिलेट करूंगा। वो तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो माइट विल अटैच दैट इन दिस वीडियो और सम अदर वीडियो जो जिसका अटैचमेंट मैं नीचे डाल दूंगा टू एक्सप्लेन यू, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो सर। सो दिस इज़ वी आर गोइंग टू बी वेलकम्ड लाइक दिस। There will be lot of artifacts in the project. जो primary focus है इस project में, that's onto the greenery and beautification. So this on the entrance you have a water body, a fountain area है, and these kind of artifacts you see lot of artifacts inside. काफ़ी पत्थर दिख रहे हैं, मतलब राजस्थानी टच तो नहीं है कहीं आपका? हमारा जो idea है to give a feeling of a resort. जब ये project complete होगा आपको इसके अंदर resort जैसा एक feel आएगा. Okay, that's great. So resort is all about basic thing is greenery. जैसे ये पूरा फाउंटेन चलेगा आपका completely? ये पूरा fountain area. So right entrance के ऊपर ही right hand side में this area is 1.25 acres starting from that point. ये पूरा का पूरा dense forest है. Okay, wow. इसमें uproot करके we'll put highland trees and बिल्कुल natural तरीके से रहेगा. बीच में this is a waterfall which is under construction right now. Okay. Waterfall है, उसके बीच में there will be a small meditation center. Wow. And this will be all enclosed with highland trees. काफ़ी मतलब जंगल वाली फीलिंग है कि नेचुरल जंगल? प्योर नेचुरल जंगल का हम इसके अंदर कंसेप्ट दे रहे हैं. कितनी ट्रीज लगेंगे आप यहाँ पर? अप्रॉक्सीमेटली 200. 1.25 एकड़ में 200 ट्रीज, वो भी तो काफ़ी अच्छा वो आएगा आपका सारा कंप्लीट। ये सब एक्चुअली क्या है ना, आजकल जितना आप नेचर को इंक्लूड करो ना अपनी लाइक प्रॉपर्टीज़ में, उतना ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, स्पेशली ये सारे पैचेस दिए गए हैं फ्लैट्स कम करके, ताकि मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी का फीलिंग आए। एंड दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द ग्रीनरी। इसके अलावा ऐसे कई सारे पैचेस हैं। आई मीन टोटल 11 एकर्स में अगर हम बात करें तो ओपन स्पेस इज 9 एकर्स. 9 एकड़? 9 एकड़ इज द ओपन स्पेस इंक्लूडिंग क्लब. तो अगर इंटरकनेक्टेड ग्रीन स्पेस की बात करेंगे दैट इज क्लोज टू अराउंड 7 एकर्स, जो सिर्फ आपको ग्रीन दिखेगा इस प्रोजेक्ट में. गाइस, जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है ना कई बार, तो वो उतना लग्जरी नहीं लगता क्योंकि वो जब तक वो फिनिश्ड नहीं हो जाता, बट आप कई फीचर्स से आप पता लगा लोगे कि यार वाई टू कंसिडर दिस एज अ लग्जरी प्रोडक्ट। क्योंकि लग्जरी का मतलब ये होता है कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हो, ग्रीन एरिया देते हो, आपके जो मतलब डेंसिटी होती है वो कम होती है, फ्लैट टू द कोर होते हैं, मैक्सिमम वेंटिलेशन होता है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ
लग्जरी थिंग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गैप्स अमंग्स द टावर्स, वो भी बहुत मायने रखते हैं आपके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वी मेक श्योर कि कोई भी ओवरलैपिंग ना हो बिल्डिंग्स की, ओके। बिकॉज दीज आर ऑल 2 कोर अपार्टमेंट्स। हाँ, तो हाँ। सभी अपार्टमेंट्स हमने क्या है 3 साइड फेसिंग बनाए हैं। 3 साइड फेसिंग। हाँ, तो उसका पर्पस तभी फुलफिल होगा व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द बिल्डिंग्स, सो दैट अगर 3 साइड फेसिंग है सो वी मेक श्योर कि आपको तीनों साइड ओपन व्यू मिलेंगे। तो यहाँ से आपने सीधा पार्किंग की एंट्री बना दी। ये रैंपिन है, सो देयर आर सेवरल रैंपिन्स, हर बिल्डिंग के आसपास रैंपिन है। दिस इज टू इंश्योर कि मिनिमम से मिनिमम व्हीकल मूवमेंट आपको सरफेस पे दिखाई दे। ओके। साइड में भी पेरीफेरी में काफ़ी ग्रीन। पेरीफेरी हमने 6 ऑलमोस्ट 8 फीट की पेरीफेरी छोड़ी। ठीक है। ये भी पूरा डेंसली ग्रीन रहेगा। ओह वाओ। So I ये suppose- सब चीज़ों में पैसे लगते हैं। जब आप स्पेस देते हो ना, 8 फीट बहुत हो गया। पूरे प्रोजेक्ट के पेरीफेरी में आप 8 फीट यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ वेरी मच ऑफ एरिया जो ग्रीन देने के लिए आपको। और यही सब चीज़ें बाद में काउंट करती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम द लीफ रखा गया है, टू गिव यू मैक्सिमम लीफ। और लीफ तब होंगे जब मैक्सिमम प्लांटेशन करेंगे हम। Yes. So there will be lot of flora and fauna done inside the group housing. ओके। हर टावर के आगे दिस इज अ ड्रॉप ऑफ जोन। हाँ हाँ। वाओ। देयर इज अ सेपरेट ड्रॉप ऑफ जोन, प्लस जितनी भी ओपन सरफेस पार्किंग्स हैं दोज आर ऑल विजिटर कार पार्किंग्स। तो ये स्टिल्ट एरिया जो आपने यूज़ किया, दिस इज फॉर पार्किंग या यू विल गिव ऑल द फैसिलिटीज? सो बिकॉज इट्स अ 2 to a core, हाँ। तो एक तरफ स्टिल्ट जो है दैट्स कवर्ड with a lobby area. Okay. I'll show you the lobby. And the other stilt we have kept it open. Basically इसमें हर किसी की privileges का ध्यान रखा गया। लॉबी तो हो गए रेजिडेंट के गेस्ट के लिए, कोई भी आता है। ओपन स्टिल्ट के अंदर वी हैव डन अ कॉमन वॉशरूम एंड अ रेस्ट रूम ठीक फॉर है। द सपोर्ट स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल गेस्ट के साथ कोई मेड है या ड्राइवर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर द जो गार्ड प्लेस्ड है, हाँ। तो उनके लिए जो सर्विसेज हैं वो ओपन स्टिल्ट के अंदर है। Okay. और जो लॉबी एरिया दैट इज प्योरली फॉर द गेस्ट। ओके गाइस, आज के डेट में बिल्डर जितना ओपन एरिया छोड़ता है ना, वही आपका लग्जरी होता है। अब आप ये देख लो, इतना बड़ा ओपन एरिया। और ये कार फ्री एरिया होगा कि दिस इज अ नॉन कार फ्री एरिया? नो, दिस इज अ नॉन कार फ्री एरिया, बट बिकॉज आपको हो सकता है इस फील से आपको लग रहा हो, जिस पे व्हीकल्स चलेंगे ये भी प्रॉपर 40 mm ग्रेनाइट की रोड्स हैं, सो दिस विल इवेंचुअली गेट अ वेरी ग्लॉसी लुक। ओके। यही बेसिकली एंट्री भी है क्लब की। हाँ। ऑन द राइट हैंड साइड इज द हाँ। क्लब। और ये सारी आपने ग्रेनाइट की वो लगा दी है? ये ग्रेनाइट 40 mm ग्रेनाइट की रोड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। गाइस, ये जो पत्थर वत्थर होते हैं ना, दे आर मोर एक्सपेंसिव। तो मेरा ये कहना है, अगर बिल्डर आपको पत्थर लगाते हैं ना, और इतना इतना पत्थर लगा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर स्पेंडिंग मोर। क्योंकि डेकोरेटेड कुछ भी चीज़ें लगा दो वो कम एक्सपेंसिव होते हैं, ये ज़्यादा महंगा होता है। तो आप इस हिसाब से देखो कि बिल्डर क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। 15,000 ऑलमोस्ट यूजेबल स्पेस मिलता है क्लब में, तो बिल्टअप इज नियर टू अबाउट 35,000 स्क्वायर फुट। ओके, दैट्स ग्रेट। So on the ground we'll have a proper concierge services with reception, double height banquet area है, proper एक premium grooming center with saloon and spa. First floor जो देख रहे हैं आधा प्लेट पूरा जिम का है, so it Oh, will be a wow. full-fledged gym. काफ़ी मतलब अच्छा जिम एरिया बना रहे हैं। Almost around 1500 square feet के आसपास तो जिम का एरिया निकल हो जाता गया, है। ठीक है। Then there are a lot of Carpet indoor games, you name it, we have it almost. और सेकेंड फ्लोर का जो कंसेप्ट है, जो टेरेस है, that will be a terrace garden with a restaurant bar, indoor outdoor both. ओके, दैट्स तो ग्रेट। जो आपको इसका जो टेरेस का ऊपर से बर्ड आई व्यू भी आएगा हाँ बिल्डिंग से, अपार्टमेंट से, हाँ हाँ। दैट विल बी एंटायरली ग्रीन। तो वो हम अभी जब ऊपर जाएंगे किसी फ्लैट में तो वहाँ से हम देख लेंगे। श्योर। और क्लब आई डोंट थिंक इट्स इन पोजीशन के हम अंदर जा सके देखने के लिए भी। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की वर्ज पे है। हाँ, इसमें गाइस एक पैचेस में ग्रीन नहीं दी गई है प्रोजेक्ट में, अलग अलग पैचेस में ग्रीन एरिया दिया गया है। द आइडिया वाज कि हर बिल्डिंग के पास देयर शुड बी सम और द अदर अमेनिटीज, Okay, कुछ that's फैसिलिटीज great. हों। और ये आई थिंक ये काफ़ी बड़ा ग्रीन पैच वाला एरिया है आपका। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं एक्सेप्ट दिस पेरिफेरल रोड, हाँ हाँ। ये सारा इंटरकनेक्टेड ग्रीन्स है। वाओ। दैट साइड ऑन द राइट इज 1 तो acre हम ऑफ एक सॉकर उधर चल ग्राउंड। के एक बार स्क्रॉल मार लें? हाँ श्योर। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉबी इन्होंने कितनी ब्यूटीफुल दी है टावर के, कितनी ग्रैंड इन्होंने लॉबीज बनाई है इन्होंने। तो इससे भी काफ़ी ब्यूटिफिकेशन आता है प्रोजेक्ट का। ओके, ये जो आपने ये जो बनाया है, ये अलग अलग पैचेस, ये सारे प्लांटर्स में यूज़ करोगे ये आप? सब प्लांटर्स हैं, सॉइल फिलिंग है, और उसके बाद जो बीच में संकन सॉकर ग्राउंड है विद नेचुरल सेटिंग्स। ओके, तो अभी इसमें पूरी सॉइल फिलिंग होगी। वी हैव डन द वाटर प्रूफिंग नाउ। और ये प्लांटर्स हैं चारों तरफ, इनमें पाम ट्रीज होंगे।
दिस लेंथ। ओके, इसमें आपने ऑलरेडी वो कर दिया हाँ, है। प्लांटिंग हमने करनी शुरू कर दी है। अभी सो अगर हम बाहर से व्यू ले रहे हैं इन अपार्टमेंट्स का, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोज आर 2 टू अ कोर और 3 साइड फेसिंग है, हाँ, हाँ। 3 साइड ओपन है। हाँ हाँ, मोर ओवर बीच में 1 एकड़ का सॉकर फील्ड है, बिल्कुल ठीक है। प्लांटर्स हैं, और बैक साइड में भी अगर हम देखें अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है हर अपार्टमेंट के साथ। वन साइड इज द मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, द अदर साइड इज देयर इज नो हाई राइज। ओके, सो आप किसी भी अपार्टमेंट को ऑप्ट करते हैं, यू गेट अ अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू दैट इज इमिनेंट। दैट्स ग्रेट। और सबसे अच्छी बात क्या, टावर के जो गैप्स है ना, इससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी एयरी है हर चीज़। और गाइस आपको वैसे बता देते हो कि अगर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होते हैं ना, तो जो क्रॉस वेंटिलेशन तो वो ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब बालकनी आपकी 2 तरफ होती है तो लाइक जो एयर का मूवमेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखवा रहा हूँ, एक टाइम के बाद यू विल रिमेंबर कि जो मैंने चीज़ दिखाई थी, और इट्स समथिंग कि मतलब बहुत ही लग्जरी चीज़ इन मेकिंग है। सो और फॉर एग्जांपल ये जो व्यू आप देख रहे हैं अभी, हाँ, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ हाईलैंड ट्रीज ही दिखेंगे। वाओ, हाँ, मतलब एक ऐसा व्यू है कि स्टॉकर फील्ड है, यहाँ प्लांटर्स है सारे, वहाँ हाईलैंड फील्ड्स है कम्प्लीटली जो फॉरेस्ट बना रहे हैं। तो एक यहाँ से तो पूरा स्ट्रेच ऐसा लगता है जैसे मतलब एक ग्रीन का ही पूरा का पूरा थॉरोबो आ जाता है कंप्लीट। दीज आर 2 टावर्स जो अभी Yeah. दिख रहे हैं हमें, हाँ, जो हमने जब हम मिले थे जहाँ पे, एग्जैक्टली। वो टावर नंबर 1 था, दिस इज टावर नंबर 2 एंड एंड दिस इज टावर नंबर 3। और यहाँ के जो 2 BHK है वो भी शायद बड़े हैं ना साइज में। लीफ इज ऑल अबाउट स्पेस। या सो मिनिमम साइज 2 बेडरूम ही स्टार्ट होता है 1640 स्क्वायर फीट से। एग्जैक्टली। तो आपने 1200-1300 वाले फुट वाले 2 BHK नहीं दिए हैं यहाँ पर। The idea was to give maximum space, somebody looking for a 2 bedroom but a larger space, larger living. बिल्कुल, जिसको 2 BHK में भी लग्जरी चीज चाहिए उनके लिए आइडियल है, वो पॉइंट है। और 3 BHK और 4 BHK को तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा 25 फैमिली पर एकड़, विच इज़ अमेजिंग। और इससे ज़्यादा ग्रीन क्या दे सकता है बंदा। I mean 2 bedroom में you have the maximum size to opt is 1772 square feet. ओके, It's a 2 bedroom with a powder room, एक गेस्ट वॉशरूम भी उसमें एक्स्ट्रा है, प्लस यू गेट अ रैप अराउंड बालकनी, एक पूरा टेरेस साइज बालकनी आता है उसके साथ। एंड देयर आर अदर 2 balconies as well, utility balcony is separate, a living balcony is separate, plus there is a wrap around balcony which is a terrace side. किड्स प्ले एरिया भी काफ़ी स्पेशियस लग रहा है वैसे। स्पेशियस है और एनक्लोज्ड एरिया है। एनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स को यहाँ थोड़ी देर के लिए किड्स को छोड़ के भी जाना है, तो ये एक तो एनक्लोज्ड होगा, प्लस मैन सिक्योरिटी होगी। हाँ हाँ, ओके गाइज, ये इनमें जब में डेंसिटी आ जाएगी ना तो ये बहुत प्यारे लगेंगे सारी चीज़ें। और तब आप सोचोगे कि हाँ, अब देखो ये अदर ग्रीन पैच एरिया में आ गया, तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ कुछ ग्रीन पैचेस अलग अलग उसमें दिए हुए हैं। सो आपको ग्रीन का फील लेने के लिए ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मूव अराउंड सोसाइटी में, आपको हर जगह आपको ग्रीनरी मिलेगी। पर गाइज आपको मैं बता दूँ, दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ न्यू गुड़गांव। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वाया वीडियो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वहाँ ले जाऊँगा CPR पे, वहाँ से हम इस प्रोजेक्ट पे आएंगे और कैसे ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो भी आई एक्सप्लेन यू। ये होगा आपका टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट, ओके, एम्फी थिएटर, MP थिएटर, ओके। सो यहाँ लोग बैठेंगे और कंप्लीटली ये परफॉर्मेंस एरिया होगा। ये परफॉर्मेंस एरिया है। तो इस तरीके से आप MP थिएटर बनाओगे सारा कंप्लीटली। The project is designed by Arcop. Arcop is well known for giving its most spacious layouts in Gurgaon, especially in Gurgaon. So अगर आप luxury projects की बात करें, so they have designed lot of luxury projects in Gurgaon. वैसे गुड़गांव के मेजर लग्जरी प्रोजेक्ट्स आरकॉप ने डिजाइन किए हाँ हैं। जी। ये जो मिड राइजेस टावर्स हैं, जो हाइट वाले थे वो अलग चीज़ है, जो मिड राइजेस इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप 3 और 4 BHK टावर्स के बारे में? अभी हम 4 BHK टावर के पास ही हैं। 4 BHK is like you have a double height lobby on the ground, then 10 simplex, I mean 10 storage, and then we have a duplex penthouse on the top. ओके, दैट्स ग्रेट। तो वो भी 2 to a core हैं। We मुझे have सबसे ज़्यादा मज़ा पेंटहाउस बेचने में आता है। आई एम पेंटहाउस स्पेशलिस्ट। हमारा सबसे स्पेशियस लेआउट भी अगर आप देखें तो 4000 स्क्वायर फुट इज अ डुप्लेक्स पेंट हाउस, दैट्स अ 4 bedroom प्लस सर्वेंट प्लस अ पाउडर रूम एंड अ लाउंज एरिया। तो उसके बाद एक और साइज है 5000 स्क्वायर फुट डुप्लेक्स पेंट हाउस है, दैट्स अगेन 5 bedroom ओके प्लस सर्वेंट प्लस अ पाउडर रूम एंड देन इट हैज़ 2 लाउंज एरियाज। ओके। सो अब अपने लाइक व्हाट वी कैन सी इज स्पोर्ट्स में जैसे और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एक तो आपने लॉन टेनिस दिखा दिया, और क्या क्या है? देयर आर 2 बैडमिंटन कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट होगा, ठीक है, 1 बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है, अ सॉकर फील्ड
ओके सॉकर फील्ड या ठीक है, टेनिस कोर्ट जब ऑलरेडी आपने, हाँ जी, हमने देख लिया ऑलरेडी। तो अब ठीक है, लाइक अब हम एक बार मॉक में देख लेते हैं चीज़ों को एंड वील सी द एक्चुअल फ्लैट। श्योर। एक काइंड ऑफ सैंपल फ्लैट देख लेते हैं और व्हाट लॉबीज एंड ऑल यू आर मेकिंग, और कौन कौन से टावर का पोजेशन देने वाले वो भी आप बता देना हमें। सो गाइस अभी हम B1 B2 टावर के सामने हैं और B6 तक पोजेशन मिल रही है आपकी फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो आप देख भी सकते हो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ी बहुत जो फाइनल कोट है आपकी वो रह गई है, उसके बाद जो असली रंग है वो आना शुरू हो जाएगा, वो पॉइंट है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं। अब आप समझा सकते हैं लॉबी के बारे में या जो भी आप आज। So this will be our lobby area. दिस इज द एक्चुअल लॉबी। Yeah. सो इसमें क्या है, प्रॉपर कंसियाज सर्विसेज हैं और रिसेप्शन एरिया। कोई भी गेस्ट आता है रेजिडेंट का, सो वी हैव प्रॉपर पेंट्री सर्विसेज फॉर द गेस्ट। Pantries. Okay, wow. अ कॉमन, देखो अब आपको मैं वैसे बता दूं, क्या पेंट्री जनरली नहीं देते कोई भी बिल्डर्स, तो दिस इज समथिंग यूनिक। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं मार्केट से कंपेयर करो चीज़ों को। पेंट्री एरिया अलग से नहीं देते, दे हैव गिवन अ पेंट्री एरिया व्हिच इज वेरी यूनिक। पेंट्री है, कॉमन रेस्टरूम ओनली फॉर द गेस्ट। वाओ, ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैक्सिमम लॉबीज में आजकल मिसिंग होती हैं। बिल्कुल ठीक है। सो वी कॉल दीज लॉबीज एज अ सेल्फ डिपेंडेंट लॉबीज। सेल्फ डिपेंडेंट लॉबीज। मतलब कोई भी गेस्ट अगर नीचे है, इफ यू डोंट वांट टू ट्रीट एनीबॉडी अपस्टेयर्स, सो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आपको नीचे लॉबी एरिया में बिल्कुल अवेलेबल बहुत हैं। अच्छा है यार, किसी के साथ लाइक में स्नैक्स अब सर्व हो सकता है हमें। Then these are all double height lobbies, air conditioned lobbies हैं। So if you talk about apartments and the lobbies, both are centrally air conditioned, VRV air conditioning has ठीक been है। installed। एक बार आपको ना आप इस पे सारी चीज़ों को समझ लो, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन में शायद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ हमने कोशिश किया समझाने का, बट माइट भी नहीं समझ में आया। तो दिस इज़ द मॉक, वो इसमें आप जितनी मैक्सिमम चीज़ें समझ लो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। So ये मॉडल बेसिकली पूरा 11.09 एकर्स को कवर कर रहा है। The 3 high rises, tower 1, 2 and 3. These are 2 bedroom towers. These are all 4 to a core. Except these 3, जितने भी mid rises आप देख रहे हैं, these are all 2 to a core apartments. और लिफ्ट्स कितने थे अपने 2 to the core में? I mean वही एवरेज आउट हम जो कर रहे थे, 25 फैमिलीज के लिए there will be 2 lifts, a double height lobby. वाओ, So that's a kind of privilege. बिकॉज लाइक ऑलमोस्ट 12 फैमिली के लिए यू आर गिविंग 1 लिफ्ट, दैट्स गुड, बहुत So एफिशिएंट। zero waiting time on the ground. एग्जैक्टली। So from here यहाँ आपको व्यू मिल रहा है 1.25 एकड़ का जो फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, Then along with that is the basketball court. Then between 3 bedroom buildings, these 4 buildings, there is a sunken soccer ground. चारों तरफ हाईलैंड ट्रीज हैं और बीच में sunken soccer field है। So this green patch जो हमने देखा था, there is a tennis court and an amphitheater at this side. फिर open greens आ जाता है उसमें। And the good part is कि चारों तरफ से unobstructed view है। ठीक है। और स्विमिंग पूल इज दिस, शायद अपने ऊपर से दिख जाएगा फ्लैट में, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट This patch, this blue patch which you see is the kids play area, dedicated kids zone है, barricaded, and the pool is in the front of the club. या। तो वो club का part है pool area. A proper lap pool with a splash pool. दैट्स ग्रेट। सो दिस इज द वॉशरूम यू वर टॉकिंग ऑफ। That's a common washroom. Yes, on the ground. So there are 2 staircases and Okay. 2 lifts. ठीक है गाइज, तो अभी हमारे लेफ्ट में 2 लिफ्ट्स आप देख सकते हो एक फ्लोर पे। बेस्ट पार्ट इज फॉर ओनली 25 फैमिलीज। अभी तो आपको लिफ्ट, बिकॉज सर्विस जब तक काम चलता है आपको ये सारा कवर्ड मिलेगा। और नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड फ्लोर। सो गाइज अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपडेट दे दूँ। अब जो फर्दर जो भी प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, वो सारे हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स होंगे। गुड़गांव में एफएआर बढ़ गया है, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना लो डेंसिटी वाले, ये हमेशा के लिए ही एक लैंडमार्क प्रोडक्ट्स रह जाएंगे। क्योंकि गुड़गांव में एफएआर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो जहाँ आज लाइक 1 एकड़ में इन्होंने 50 फैमिली दिए, तो इट माइट बी इन फ्यूचर कि यू विल गेट अराउंड 130 फैमिलीज या 120-130 फ्लैट, जो गुड़गांव के नए एफएआर रूल्स के हिसाब से। सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। So this we will have a look at a 2400 square foot, which is a 3 bedroom plus servant plus a powder room. Okay, so servant room is this. Servant is outside, which is also connected via the balcony, which is common with the balcony.
So we moreover call it a utility room because अभी post COVID के बाद people look for a dedicated space for work from home. Yeah, exactly. तो ये एक वो space निकल के it's आता a है जो space you can use it anyhow, however you like. So this is the powder room. that's the powder room. So flooring हम Italian लगा के दे रहे हैं. Okay. And the best part is जो VRV air conditioning है it's ceiling mounted. Okay. तो आपकी वॉल कहीं भी वेस्ट नहीं वॉल कहीं भी वेस्ट नहीं होती. मोर ओवर जो इसका आउटडोर यूनिट हम प्लेस कर रहे हैं वी वोंट बी यूजिंग एनी ऑफ द कारपेट एरिया. ओके. तो जो इसका आउटडोर यूनिट होगा VRV का दैट इज प्लेस्ड इन अ कॉमन फसाड. ये गाइज आपको ना जो अब VRV के लिए ज़्यादातर बिल्डर एक आपका लिफ्ट वो एक आपका जो वो है ना सॉरी बालकनी है वो ख़राब करते हैं. तो इन्होंने वो चीज़ आउटडोर एरिया में हैंग किया है तो आपका वो एरिया बच जाता है. तो यू हैव टू रेस्पेक्ट फॉर दैट क्योंकि नाना करते करते वो 50 फुट का होता ही होता है बालकनी का. जो प्लस अगर मैं उसको हैंग भी करता या बालकनी से कहीं क्लोज भी रखता तो बालकनी की फिर यूटिलिटी वेस्ट हो जाती है. रीजन मीन कि वो हीट अप करेगा बालकनी को और आप यूज नहीं कर पाएंगे. वो रूम थोड़ा सा मतलब न्यूसेंस वाला हो जाता है. यस लोग क्या करते हैं सर्वेंट रूम के साथ लगा देते हैं. कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बेचारे सर्वेंट को बड़ी परेशानी होती है. So starting from the living and dining, because it's a 2 to a core, 3 side facing apartment. So a lot of natural light रहेगी इसमें. The floor to floor height is approximately 10.5 feet. ओके दैट्स गुड. वो अच्छा हाइट है. And the best part, I'll show you start with the balconies. So it's a 33 feet running balcony, all 6 feet wide. देख लो गाइस ये सब मज़ा होता है घर का. बाहर भी प्लांटर्स लगाओ घर पे भी प्लांटर्स लगाओ. I mean, you can easily put 4 chairs and a coffee table between. इतना space है इसमें. एक्चुअली क्या होता है ना लग्जरी इसी को कहते हैं. 2 रूम का कमरा या 3 रूम का कमरा या 4 रूम का कमरा हर बिल्डर देता है. एडिशन जो आप देते हो दैट इज लग्जरी. वो चीज़ एग्जैक्टली. और लग्जरी का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ब्राइट होना चाहिए. कई बार सोवर चीज़ें भी बहुत लग्जरी होती है. True. जैसे मैंने आपको क्लब में जैसे सपोज मान लो जैसे अपने पत्थर लगाया एग्जांपल मान लो क्लब में तो दैट्स सिंपल. भाई उसमें ज़्यादा खर्च होता है. So that's the kitchen area. ओके. सो किचन में आप आई थिंक किचन में आप कुछ भी नहीं लगा के दोगे. Kitchen will be raw. किचन यू आर गिविंग अ रॉ. तो गाइज I mean, client can get it customized by themselves. हर कोई अपने हिसाब से चाहता है. Being a luxury project, everybody wants a kitchen of their own style. So that's the idea. ठीक है गाइज. अब लोगों को ना गुड़गांव में कई बार किचन खुद की बनवा मतलब कई बिल्डर से लेने की आदत हो गई है. तो इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा लाइक इन सेंस की मतलब बोथ हैज देखो बिल्डर भी एड ऑन करेगा आपके कॉस्ट पे वो चीज़ है. तो कहीं ना कहीं आप अपनी कॉस्ट बचाओ और आप खुद के अपना किचन बनाओ. सो दिस इज द अनदर This बालकनी. is the other side. This is also approximately 27 feet long. ये बालकनी भी काफ़ी अच्छी तो लग ये रही है आपको. बालकनी ओवरलुक कर रही है क्लब की तरफ. ठीक है. और ये आप पूरा ग्रीन बनाओगे वो हम ऊपर से देख ऊपर पूरा टेरेस गार्डन ग्रीन कवर्ड होगा. गाइस ये भी देख सकते हो आप जो पूल वाला एरिया है इसमें आपका लाइक देयर विल बी स्विमिंग पूल. One lap pool and देयर विल बी one वन splash लैप pool. पूल. और ये आगे पूरे हाईलैंड ट्रीज के लिए हम सॉइल फिलिंग कर रहे ठीक हैं. है. और किड्स पूल भी होगा ना. हाँ जी. किड्स पूल है ना. किड्स पूल लैप पूल और सारा हाईलैंड ट्रीज लगेगा आपका. यहाँ से आपको फिर सब एंड टू एंड ग्रीन ही दिखेगा. ओके. ये इस तरीके से तो जिस स्ट्रेच से भी देखोगे मैक्सिमम एरिया आपको फॉरेस्ट का दिखेगा आपको कंप्लीटली. तो मेरा कहना है कि बगल में एक एयर वाले और आप मिलके आधा पॉल्यूशन तो लगता है 85 सेक्टर का आप 85 का तो कर दोगे. खत्म हो जाएगा. हम इसको थोड़ा नेचुरल तरीके से कर रहे हैं. ओके. हाँ क्योंकि आपने एक पूरा वो किया है वाली बात है. सो दीज आर 3 रूम्स. दिस इज द फर्स्ट बेडरूम. या यहाँ आप क्या क्या लगा के दे रहे हैं. इससे एक तो फ्लोरिंग फॉल सीलिंग सॉरी लाइक एक तो आप जो VRV एयर कंडीशनिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि ये वो चीज़ें जो मार्केट में अलग तरीके से मिलती है. ज़्यादातर VRV आपको मिलती है कि एक VRV लगा हुआ था और ये आपका बाहर निकला हुआ था स्प्लिट यूनिट. इन्होंने इसको बिल्कुल फिट करके दिया है. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं और इस कारण से यू आर गिविंग फॉल सीलिंग ऑल्सो. फॉल सीलिंग हम देंगे जहाँ VRV यूनिट्स जहाँ VRV है यू आर गिविंग फॉल सीलिंग. तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कराने की भी जरूरत पड़ेगी. हम चाहते भी नहीं क्योंकि यूएसपी इसकी 10.5 फीट की सीलिंग हाइट है. बिल्कुल, प्लस exactly. फॉल लाइट्स का प्रोविजन भी हमने ऊपर Exactly. सीलिंग में दिया हुआ है.
प्लस एडवांटेज एक और है, तीनों बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है, देयर इज अ सेपरेट गेस्ट वॉशरूम। और वॉशरूम में आप क्या लगाओगे, लाइक जैसे ये तो आपने बता दिया कि वुडवर्क आप करके नहीं दोगे, बट यू हैव शोन कि हाउ यू कैन यूज। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये आप देख लो, सनलाइट। सनलाइट मैं थोड़ा सा हाँ ये वाला इस तरीके से आपका नेचुरल लाइट्स का प्रोविजन अच्छा बन जाएगा रूम के अंदर। आप अगर पूरे अपार्टमेंट में खाली शेयर कर्टन्स यूज करते हैं तो आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत नहीं, दैट्स ग्रेट। यहाँ से भी और सबसे अच्छी बात क्या, क्लब के ऊपर भी आपको जब ग्रीनरी मिलेगी तो वो ऐसा वो नहीं लगेगा कि ये सिर्फ खाली सा टेरेस है आपको। वॉशरूम की फिटिंग्स ऑलमोस्ट सेम होगी आपकी। यू कैन यूज सी द ब्रांड्स, रोका का आपका WC है। WC एंड CP फिटिंग्स अभी रोका की हैं। जो वॉशरूम आप देख रहे हैं वो एग्जैक्ट फिटिंग्स हैं सभी। ठीक है, एंड दिस एग्जैक्ट फ्लोरिंग यू विल यूज इन द दीज आर ऑल कजारिया मैट फिनिश टाइल्स। ओके, दैट्स गुड। कॉमन फॉयर्स और लिविंग डाइनिंग में इट्स ऑल इटालियन। और जो वॉल फिनिशिंग भी हम लोग दे रहे हैं, इट विल बी ऑल सिमेट्रिकल वॉल्स, रीजन बीइंग कि सीमेंटेड वॉल के ऊपर वी आर डूइंग POP पुनिंग एंड देन देयर इज अ एक्रेलिक एमल्शन ऑन टू इट। ओके, सो बिल्कुल सिमेट्रिकल वॉल्स आपको मिलेंगे। ओके, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सिमेट्रिक वॉल है। और आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आई थिंक एग्जैक्टली। अगर आप वाइट कलर आप करके ही दोगे, आपको सिर्फ शेड्स मैनिपुलेट करने हैं, दैट्स इट। शेड्स मैनिपुलेट करने हैं, काफी खर्चे बचते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो गाइस सेकंड रूम सेकंड रूम। आ जाओ। The most beautiful thing is कि all the bedrooms, I mean the entire, not a single area of the apartment which is not connected with the balcony. बालकनी, दैट्स गुड। और बालकनीज भी बिल्कुल ओपन आपने वो दिया है। ये सेम रनिंग बालकनी जो हमने डाइनिंग से देखी थी, 33 फीट लॉन्ग। And again this will be the washroom. This is the master bedroom. Yeah. So master bedroom is like 16 by 12.5 plus additional dresser area, and the washroom size is fantastic. Again master bedroom में भी बालकनी से कनेक्शन। मास्टर बेडरूम हैज अ रैप अराउंड बालकनी, इसकी Wrap-around अपनी balcony. इंडिपेंडेंट बालकनी है। वाओ, So this balcony gives the third view to the apartment. ये स्पेशल बालकनी फॉर मास्टर बेडरूम। तो जैसे सपोज मास्टर बेडरूम में अगर किसी को बैठना हो, एक होता है ना कि लाइक कई बार वो अपना एक प्राइवेट टेरेस यूज़ करना चाहते हैं, तो दे कैन यूज़ इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग। और अच्छी चीज़ है जो खुला है ना, तो धूप भी अच्छी आ जाएगी, हवा भी अच्छी आ जाएगी। अब तो ठंड का मौसम तो इस टाइम धूप सेकने के लिए तो बेस्ट जगह है। अच्छा काफ़ी, और व्यू तो खैर हर जगह से है। So इसमें ऐसा है कि बी इट एनी अपार्टमेंट, आपको कॉम्बिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू ऑटोमेटिकली गेट अ सन फेसिंग अपार्टमेंट। ओके, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रोविज़न आपने अलमीराज का दे दिया है यहाँ पर। प्रोविजंस हमने प्रॉपर्ली दिए हुए हैं, ठीक है। एंड लुक एट द वॉशरूम साइज इज वेरी कंफर्टेबल। सो अच्छा, ये एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप देख रहे हैं वॉशरूम्स Okay. में। तो अगेन पूरा- हमने कॉर्नर्स भी जो हैं ट्रांसलूसेंट शीट के साथ छोड़े हैं, अगेन जस्ट टू मेक श्योर कि नेचुरल लाइट पूरी बनी रहे अपार्टमेंट में। ये भी बहुत यूनिक चीज़ है कि वॉशरूम के अंदर भी नेचुरल लाइट्स है, फ्रेश। हाँ ये है कि nobody can peep in। ये ओके, ये आप ग्लास ओपन दोगे वाली बात एग्जैक्टली, मतलब कोई फिक्स ग्लास होंगे ये। टिंटेड ग्लास दे दिए, प्राइवेसी भी और थोड़ी रोशनी भी रहेगी आपको। नेचुरल लाइट एक ऐसी चीज़ है जो कभी क्रिएट नहीं की जा सकती बाद में। बाकी आप कुछ भी कितने भी पैसे खर्च करके, तो अगर आपके अपार्टमेंट में फर्स्ट डे से तो वो है, नहीं तो नहीं है। गैस यहाँ आपको इसलिए लाया गया है ताकि आप यहाँ से व्यू देख लो। और आई थिंक इतना ओपन एरिया ना और इतना अच्छा व्यू आपको बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिलेगा। गैप देख लो एक एक प्रोजेक्ट का।
कोई ओवरलैपिंग नहीं है किसी टावर का। आज मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई टावर सामने नहीं दिख रहा मेरे, बहुत गैप है, खुला है हर तरफ से एरिया है, हर टावर के आसपास ग्रीन एरिया दिया गया है। और ये जितना जहाँ जहाँ टावर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है ना, कहीं पे भी आप देख रहे हो तो वो सारे ग्रीन एरियाज हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है, कोई हाई राइज नहीं है दूर दूर तक आपका। कभी भी ये व्यू आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, कभी भी।